Hello students, today we will complete our lesson 6 of Honeydew book. This is Geordie's Fawn, page number 90. The sports were all in a line on a doe fawn passes. The sports are every which way. On a phone there were the sports who were in a line. That indicates that it was a male member. His father told him about that. उसके फादर ने उसको क्या बताया था कि इसकी बॉडी पर जो स्पॉट्स हैं, जो लाइन में स्पॉट्स हैं, वो इस बात को इंडिकेट करते हैं कि ये मेल पर्सन है. जोडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू द थॉट ऑफ द फोन. दे पास्ड द abandoned clearing. Jody at that time was thinking about the phone. He wanted to came back it at home. He said, cut to the north, Millville. It was up here that Pa got bitten by the snake and killed the doe, and I saw the phone here at that time. Jody gave direction to the Millville that we should cut to the north. कि अब हमें नॉर्थ में जाना चाहिए. because it was there his father Penny was bitten by the snake, and here also they killed the doe and Jody saw the phone. यही वो जगह है जहाँ पर जोडी के फादर को रैटल स्नेक ने बाइट किया था और डो को मारा था और फोन को उसने वहीं देखा था. Suddenly, Jody was unwilling to have Millville with him. Now, at that time, Jody did not want Millville to stay with him. Means, Jody wants that Millville should leave him. So, if the phone was dead, there were two reasons behind that. कि उसके पीछे दो रीज़न है कि जोडी नहीं चाहता कि जो मिलवील है अब वो उसके साथ रहे. उसके लिए दो रीजंस हैं. इफ़ द फोन वॉज डेड और कुड नॉट बी फाउंड, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन. कि अगर उनको जोडी को फ़ोन नहीं मिलता तो वो अपनी डिसअपॉइंटमेंट, अपनी सैडनेस को, डिसअपॉइंटमेंट होता है सैडनेस को, किसी को शो नहीं होने देना चाहता. एंड इफ़ द फोन वॉज देयर, the meeting would be so lovely and so secret that he could not endure to share it. And in the second reason is that if the phone was found by the Jody, then the meeting was very lovely and Jody didn't want that meeting with anyone. He said, it's not far now, but the scrub is very thick. Scrub means grass. वहाँ पे जो घास थी वो बहुत गहरी थी. फॉर अ हॉर्स आई कैन, क्योंकि जो घोड़ा है वो चल नहीं पा रहा था घास गहरी होने के कारण, तो जो वो पैदल का रास्ता था. आई कैन मेक इट ऑन फुट, बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय. सपोज यू गोट लॉस्ट और गेट बिटन बाय स्नेक टू. कि जो मिलवील है वो उसको वहाँ के लिए नहीं छोड़ना चाहता था फॉरेस्ट में. वो ये चाहता था कि कहीं तुम गुम हो जाओ, अपना रास्ता खो बैठो, या फिर स्नेक के द्वारा बाइट किया जाएगा आपको मैं अकेले नहीं छोड़ सकता. देन जोडी रिप्लाइड, आई विल टेक केयर. इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन. इफ़ ही इज़ वॉन्डर्ड लीव मी ऑफ राइट हेयर. कि मुझे आप यहीं छोड़ दो. जोडी ने मिलवील को कहा कि आप मुझे यहीं छोड़ दो. All right, but you take it easy now. You know north here and east. But here, Millville was giving direction to the Jody by saying that after that you have to take north and then east. There and there, that tall pine makes a bearing. Means there were the tall pine tree. Making a bearing means acts as a compass and helps to identify the direction. कि ये जो टाल पाइन ट्री है ये आपको डायरेक्शन, ईस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ढूंढने में मदद करेगा. सो लॉन्ग मिलहिल, आई एम ओब्लाइज्ड. ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूव्स टू एंड. एट दैट टाइम जोडी वॉज वेटिंग.
Hoofs here is the plural of hoof, that is used for the feet of horses. And then cut to the right. The scrub was still, the grass was also there, only his own crackling of twigs sounded across the silence. अब वहां पर ट्विग्स होती है टहनियां, क्रैकलिंग मीन्स टूटना, सिर्फ टहनियों के टूटने की आवाज आ रही है, बाकी वहां साइलेंस है बिल्कुल. ही wondered for an instant if he had mistaken his direction. अभी मुझे एक बार उसको ऐसा लग रहा है कि वो अपनी डायरेक्शन को गलत डायरेक्शन में है. Then a buzzard rose in front of him and flapped into the air. Buzzard means a large bird like the vulture that eats the flesh of dead. कि जो डेड एनिमल होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनका जो फ्लैश खाता है उसको वल्चर बोलते हैं. रोज इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने आया, एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर, और हवा में उड़ गया. ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक्स. Buzzards sat in a circle at this where the dead body of doe was left. At that time, buzzards were making a circle around the doe. They turned their hands on their long scrawny necks. Scrawny necks क्या होता है? Unattractive long necks. And hissed at him. Hissed at होता है making sound of disapproval. He threw it bow at them and they flew in ten adjacent tree. He threw his bow at them. उसने उनके ऊपर एक टहनी फेंकी, जो पेड़ की जो है मेन ब्रांच है वो फेंकी, एंड उसके बाद वो उड़कर अब एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं नियर बाय. द सैंड शॉड लार्ज कैट प्रिंट्स बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश. जो सैंड है उस मिट्टी को देखने पर पता चल रहा है कि जो लार्ज कैट के फुटप्रिंट्स हैं वहाँ पर, बट द बिग कैट्स किल्ड द फ्रेश, कि जो बिग कैट्स हैं वो फ्रेश फ्लैश को खा चुकी हैं. अब जो लेफ्ट ओवर है वो कौन खा रहे हैं? बर्ड्स को, वल्चर्स को. दे हैड लेफ्ट द डो टू द कैरियन बर्ड्स. अब पहले जो फ्रेश फ्लैश ऑफ डो था वो किसके द्वारा खा लिया गया? बिग कैट्स के द्वारा. अब ये जो लेफ्ट फ्लैश है ये किसके लिए छोड़ दिया गया? बर्ड्स के लिए, कैरियन बर्ड्स के लिए. ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फोन. आफ्टर दैट जोडी मेड हिज पाथ इन द ग्रास. अपना रास्ता बनाता है घास के बीच में से. इट डिडंट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली येस्टरडे. ऐसा नहीं लग रहा था कि ये सिर्फ कल की इंसिडेंट है. द फोन वॉज नॉट देयर. ही सर्कल्ड द क्लियरिंग. अब वो जो क्लियरिंग है अपना सर्कल बनाता है, देखता है. देयर वॉज नो साउंड, नो साइन. द बजार्ड्स क्लैक्ड देयर विंग्स. क्लैक्ड होता है साउंडेड देयर विंग्स. इम्पेशेंट टू रिटर्न देयर बिजनेस. मतलब जो बजार्ड्स हैं वो वेट कर रहे हैं कि कब जोडी वहां से जाए और वो अपना काम करें. वो क्या काम कर रहे थे? वो डो के बचे हुए फ्लैश को खा रहे थे. ही रिटर्न टू द स्पॉट. आफ्टर दैट जोडी रिटर्न टू द स्पॉट. स्पॉट मीन्स प्लेस, ऐसी जगह जहाँ पहुँचता है जहाँ वेयर द फोन हैड एमर्ज एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल द फोर्स. स्टडीइंग द सैंड फॉर ऑल सम हूफ प्रिंट्स. अब उसको वहाँ एनिमल्स की फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं. नाइट्स रेन हैड वॉश्ड अवे ओल्ड ट्रैक्स. जो रात में बारिश हुई है उसके कारण जो स्पॉट्स हैं उनके क्लीन हो गए वो, एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट और बजर्ड्स. और किसके बचे हुए प्रिंट्स, फुटप्रिंट्स किसके बचे हुए हैं? कैट एंड बजर्ड्स के. मूवमेंट्स डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टल्ड हिम. स्टार्टल्ड होता है सडन, शॉक्ड हिम सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड. मीन्स एकदम उसने, उसकी जो नज़र है वो एकदम फोन पर पड़ी, हल्की सी नज़र, फिर उसने बैकवर्ड टर्न किया. द फोन लिफ्टेड इट्स फेस. जो फोन है उसने अपने फेस को ऊपर किया. टू हिज it turns its head with a wide wandering motion and shook him through with the stare of its liquid eyes. means उसकी जो eyes थी फोन की वो गीली थी. means वो अपनी मदर के लिए रो रहा था. It was quivering. quivering मतलब shivering, काँप रहा था.
काँप रहा था, भूखा था, छोटा सा था, उसकी मदर नहीं थी, इट वॉज स्टार्विंग एंड ही वॉज शिवरिंग ऑल्सो. इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन. मीन्स कोई ना तो वो चल पा रहा था, नहीं उठ पा रहा था. जोडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव. जोडी उसके पास चला जाता है एंड ही विस्पर्ड, ही आस्क्ड स्लोली टू हिमसेल्फ, इट्स मी. क्या ये वही फोन है, मेरे वाला फोन है. द फोन लिफ्टेड इट्स नोज स्कैंटिंग हिम. जो फोन है वो भी अपनी नोज को ऊपर उठाता है. स्कैंटिंग सूंघना, जिसको स्नफिंग हिम. ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक. आफ्टर दैट वो अपना एक हाथ आगे बढ़ाता है, दूसरे हाथ से उसकी सॉफ्ट नेक को उठा लेता है. द टच मेड हिम डेलायरस. डेलायरस मीन्स ही वॉज वेरी फीलिंग वेरी एक्साइटेड when he touched the phone. He moved forward on all fours until he was close beside it. He put his arms around its body. A light convulsion passed over it, but he did not stir. Means उसने अपनी आर्म से उसकी बॉडी को ऊपर उठाया हल्के से, सॉफ्टली, फिर भी वो बिल्कुल मूव नहीं हुआ. He stroked its side as gently as though the phone were a china deer and he might break it. उसने उस फोन को इस प्रकार से उठाया जैसे कि कोई चाइना डियर हो, कि जैसे चाइना के टॉयज होते हैं वो इतने सॉलिड नहीं होते, जल्दी से टूट जाते. इस प्रकार से उसने भी उसको बड़े ही सॉफ्टली उठाया कि कहीं उसके हाथ से गिरकर वो जैसे कि चाइना टॉयज की तरह टूट ना जाए. Its skin was very soft. It was sleek and clean, had a sweet scent of grass. बहुत क्लीन, स्लीक एंड स्वीट सेंट ऑफ ग्रास. उसके अंदर से जो है ग्रास की जैसे अच्छी अच्छी भीनी भीनी खुशबू सी आ रही खुशबू. ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फोन फ्रॉम द ग्राउंड. ग्राउंड से उसको ऊपर उठा लिया. इट्स लेग्स हंग लिम्पली. लिम्पली क्या होता है, ढीली ढाली. ढीली ढाली टांगे उसकी लटक रही हैं. They were surprisingly long. Its legs were very long and he had to hoist the phone as high as possible under his arms. अब वहाँ पर जो है ना कांटेदार झाड़ियाँ हैं, कांटेदार झाड़ियों के कारण उसको फोन की बॉडी को इतना ऊपर उठाना है जितना ऊपर वो उसको उठा सकता है, नहीं तो उसको चोट लग सकती है कांटेदार झाड़ियों के द्वारा. He was afraid that, Jody was afraid that it might kick, कि ये मेरे को मार सकता है, इसकी टांग से मेरे को हिट कर सकता है. and bleed at sight and smell of its mother. He skirted, क्योंकि उसको जब उसने उठा रखा है तो उसको अपनी मदर की स्मेल नहीं आएगी, तो उसको देख रहा है और उसको he skirted the clearing and pushed his way into the thicket. thicket होता है जैसे कि वहाँ पर बुशीज हैं, झाड़ियाँ हैं, ग्रास है, थिक, उनमें से वो रास्ता बनाते हुए बड़ी मुश्किल से निकल रहा है. इट वॉज डिफ़िकल्ट टू फाइट थ्रो विद हिज बर्डन. और उसके लिए बहुत ही मुश्किल है कि इतना बड़ा भी नहीं है वो, उसने फ़ोन को भी उठा रखा है और बीच में से, जंगल के बीच में से बड़ी मुश्किल से अपना रास्ता बनाते हुए निकल रहा है. द फोन्स legs caught in the bushes and he could not lift his own with freedom. जो फ़ोन की लेग्स हैं वो बुशेस के बीच में फंस जाती हैं और उनको वो उठा नहीं पाता अच्छे तरीके से. He tried to shield its face from the prickly vines. वह उसके फेस को prickly vines होता है कांटेदार झाड़ियों से बचाने की कोशिश करता है पूरी. Its head bobbed with its stride. वह उसके सिर को जैसे कि अपने हाथ से इस प्रकार से करता है कि गर्दन के हाथ रखा है कि इसके मुंह को, आइज को, नोज को कोई प्रॉब्लम ना हो. His heart thumped with the marble of his acceptance of him. His heart thumped होता है beated. His heart started beating with the joy of, marble होता है joy, कि उसको उसका फ़ोन मिल गया, उसको बड़ी खुशी मिल रही है. अब उसको खुशी मिल रही है, जब हमें बहुत खुशी मिलती है तो हम डिफ़िकल्ट सिचुएशन को भी बहुत अच्छे से फेस कर लेते हैं क्योंकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है. ही रीच्ड द ट्रेल, ही रीच्ड द पाथ एंड वॉक्ड एज फास्ट एज ही कुड अंटिल ही केम टू द इंटरसेक्शन विद द रोड होम. वो इतनी तेज़ स्पीड से अपने रास्ते पर आने की कोशिश करता है कि जहाँ से उसको रोड पर सीधा रास्ता अपने घर की तरफ चल पड़े.
ही स्टॉप्ड टू रेस्ट। अब वो इतना थक जाता है कि वो आगे कदम नहीं बढ़ा पाता, इसलिए वो थोड़ा सा रेस्ट लेता है। सेट द फोन डाउन ऑन इट्स डेंगलिंग लेग्स। डेंगलिंग होती है हैंगिंग लेग्स। अब उसकी जो लटकती हुई टांगे हैं उनको नीचे छोड़ देता है। इट वेव्ड ऑन हिम, और उसकी जो टांगे हैं वो डगमगाने लग जाती हैं, मतलब वो स्टैंड नहीं हो पा रहा अच्छे तरीके से। इट लुक्ड एट हिम, वो उसकी तरफ देखता है। और ब्लिटेड, ब्लिटेड होता है साउंडेड, और आवाज़ करता है कि जैसे कि ये जो मिमियाना करते हैं ना, आवाज़ करता है, साउंड करता है फ़ोन। किस लिए साउंड करता है? कि वो उसको उठा ले, उससे खड़ा नहीं होया जा रहा। ही सेड एनचांटेड आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रीथ। और जॉडी भी उसको कहता है कि अट्रैक्टिव वे में, एनचांटेड मीन्स उसकी तरफ वो अट्रैक्ट है, अफेक्शनेटली उसको बोलता है कि मैं तुम्हें उठाऊंगा बट मैं पहले थोड़ा सांस ले लूँ। ही रिमेंबर्ड हिज फादर सेइंग दैट फोन वुड फॉलो इफ इट हैड फर्स्ट बीन कैरीड, कि अगर आप उसको लेकर आओगे थोड़ी दूर तक तो वो आपको फॉलो करेगा। ही स्टार्टेड अवे स्लोली, वह थोड़ा थोड़ा चलने लगता है। द फोन स्टेयर्ड आफ्टर हिम, जो फोन है वो भी उसका पीछा करता है, फॉलो। ही केम बैक टू इट एंड स्ट्रोक्ड इट एंड वॉक्ड अवे अगेन, फिर उसको वो उठा लेता है, फिर से चलने लगता है। इट टुक अ फ्यू वॉबलिंग स्टेप्स टुवर्ड्स हिम। वॉबलिंग स्टेप्स होते हैं मूव अनस्टेडीली। एक तो हम अच्छे तरीके से चलते हैं स्थिर स्थिर, लेकिन एक हम डगमगाते हुए चलते हैं, अच्छे से नहीं चल पाते, तो उसको वूबलिंग स्टेप्स। टुवर्ड्स हिम क्राइड पाइटियसली, और वो चिल्लाता है अनस्टेडली चलते हुए, थोड़ा थोड़ा चिल्लाता है। क्यों चिल्ला रहा है वो फोन? कि ताकि जोडी उसको उठा ले। इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम। इट वॉज विलिंग, विलिंग मीन्स उसकी इच्छा थी कि वो उसको फॉलो करे। इट बिलोंग्ड टू हिम, अब उसको लगता है कि ये मेरा कोई अपना है। फोन, अब जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर भी फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, वो भी समझते हैं कि ये जो पर्सन है ये मेरे लिए कर रहा है तो ये मेरे को बिलोंग करता है। इट वॉज हिज ओन। ही वॉज लाइट हैडेड विद जॉय, और वो भी ये देखकर बहुत खुश होता है कि जो फोन है वो उसको फॉलो कर रहा है, उसको अपना समझ रहा है। ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट, फॉन्डल मीन्स लव। जोडी वॉन्टेड टू लव इट एंड वॉन्टेड टू रोम्प विद इट। रोम्प होता है प्ले विद इट, और वो भी उसके साथ खेलना चाहता है। टू कॉल इट टू कम टू हिम होम, अब उसको बुलाता है घर के लिए, कम टू हिम। ही डेयर्ड नॉट अलार्म्ड हिम। ही पिक्ड इट अप एंड कैरिड इट इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर हिज टू आर्म्स। अब उसको उठा लेता है और अपनी दो बाजुओं के बीच में उठा लेता है। इट सीम्ड टू हिम दैट ही वॉक्ड विदाउट एफर्ट, अब वो चल पड़ता है वहाँ से। हिज आर्म्स बिगेन टू एक, एक मीन्स पेन। अब वो इतना मतलब अभी बड़ा नहीं है तो उसको उठा रहा है, तो मीन्स उसकी जो आर्म्स हैं उसमें दर्द हो रहा है, वो और नहीं उठा पा रहा है, फिर भी वो पूरी एफर्ट्स के साथ उसको उठा रखा है। ही वॉज फोर्स्ड टू स्टॉप अगेन, फिर से रुक जाता है क्योंकि उससे चला नहीं जा रहा, उसकी आर्म्स में बहुत दर्द हो रहा है। व्हेन ही वॉकड ऑन द फोन फॉलोड हिम, और वो चलने लगता है तो फोन जो है वो उसको फॉलो करता है। ही अलाउड इट टू वॉक अ लिटल डिस्टेंस, अब वो थोड़ा सा डिस्टेंस तो दोनों आपस में चलते हुए करते हैं कवर। एंड देन पिक्ड इट अप अगेन, अब फिर से जोड़ी उसको दोबारा उठा लेता है। द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग, जो घर है वो अब बिल्कुल पास है। ही वुड हैव वॉकड ऑल डे एंड इन टू द नाइट एंड कैरिंग इट एंड वॉचिंग इट फॉलो। ही वॉज वेट विद स्वीट, वह पसीने से गीला हो चुका है। बट अ लाइट ब्रीज ब्लू थ्रू द जून मॉर्निंग कूलिंग हिम, और वह जैसे कि पूरी रात स्पेंड कर दी उसको ढूंढने में, अब जो हल्की हल्की हवा चल रही है जून की मॉर्निंग की, उससे उसको थोड़ी ठंडक महसूस हो रही है। द स्काई वॉज एज क्लियर एज द स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना कप, जैसे ब्लू चाइना कप के अंदर वाटर एकदम क्लीन नज़र आता है, इस प्रकार से स्काई भी बहुत क्लियर है। ही केम टू द क्लियरिंग, इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन, नाइट की रेन के बाद बिल्कुल फ्रेश और ग्रीन एटमोसफियर लग रहा है। ही फंबल्ड विद द लैच हैंडल्ड, लैच क्या होता है? जो गेट खोलने के लिए होती है ना, उसकी बनी हुई होती है लैच, उसको बोलते हैं। एंड वॉज फाइनली ओब्लाइज टू सेट डाउन द फोन टू मैनेज इट। देन ही हैड एन आइडिया, ही वुड वॉक इन टू द हाउस, अब इसको पैदल चलाकर ले जाएगा हाउस में, इन टू द पैनीज बेडरूम विद द फोन वॉकिंग बिहाइंड हिम, और वो पहले जाएगा और फोन उसको पीछे से फॉलो करेगा। बट एट द स्टेप्स द फोन बार्क्ड, बार्क्ड होता है अनविलिंग टू गो, वो चाहता है कि जोडी उसको उठा ले। एंड रेफ्यूज टू क्लाइंब देम, ही पिक्ड इट अप, अब जोडी उसको उठा लेता है। वेंट टू हिज फादर, पैनी ले विद क्लोज्ड आईज,
where the penny was lying in his room on the bed with closed eyes, Jody called, Pa, look. Jody called, Pa, look. Penny turned his head. Jody stood beside him. Jody उसके साइड में खड़ा है. The phone clutched hard against him. और जो फोन है भी उसने भी उसको बहुत अच्छे से पकड़ रखा है, क्लच कर रखा है. And it seemed to Penny that boy's eyes were as bright as the phone's. And he said, I am glad you found him. जो जोडी की आंखों में जो ब्राइटनेस है, खुशी है उसकी आंखों में, उतनी ही खुशी फोन की आंखों में भी है. और उसके फादर कहते हैं कि आई एम ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने फोन को फॉरेस्ट में से ढूंढ दिया. जोडी देन वेंट टू द किचन. द फोन वोबल्ड आफ्टर हिम. वोबल्ड मतलब वो भी अपने मूव अनस्टेडीली एंड फॉलोड हिम. अ पैन ऑफ मॉर्निंग मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ. अभी जो मिल्क का पैन था वो किचन में सेफ रखा था. क्रीम हैड राइजन ऑन इट. उसके ऊपर क्रीम आई हुई थी. ही स्किम्ड द क्रीम इनटू अ जग. अब उसको क्रीम को हटा लेते हैं. एंड ही पोर्ड मिल्क इन अ स्मॉल गोर्ड. गोर्ड वैसे तो क्या होता है बेटा, एक हार्ड, जिसको आप कहते हैं ना कि एक फ्रूट होता है, इसके अंदर तो गूदेदार होता है, बाहर से वो हार्ड उसका जो छिलका होता है, उसमें वो क्या करता है, ही हेल्ड इट आउट टू द फोन. ही बटेड इट सडनली. उसके अंदर वो मिल्क डालता है और फोन के लिए ही बटेड इट सडनली, और उसको देता है स्मेलिंग द मिल्क, और वो स्मेल करता है मिल्क की. ही सेव्ड इट प्रिकेरियसली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर. और वो उसको सेफ्टली वहाँ रखता है ताकि जो दूध है वो फर्श पर ना गिर जाए. इट वुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गोर्ड. ही डिप्ड हिज फिंगर. अब वो क्या करता है, अपनी फिंगर्स को मिल्क में डिप कर देता है जोडी. एंड थ्रस्ट देम इनटू द फोन्स सॉफ्ट वेट माउथ. और उसके मुंह को गीला कर देता है, उसके मुंह में डाल देता है. ही सक्ड ग्रीडली. वो भी सक कर देता है उसको ग्रीडली, मतलब उसको बहुत भूख लगी है. When he withdrew them, it bleated frantically and butted him. फिर से वो साउंड करता है और डिमांड करता है. He dipped his finger. फिर से वो अपनी फिंगर्स को डिप करता है और उसको सक करवाता है. He lowered them slowly into the milk. अब ऐसे करते करते वो जो दूध है वो बिल्कुल नीचे रह जाता है. The fawn blew and sucked and snorted. और वो सारा दूध पी जाता है. And breathing sound, और breathing sound लेता है. snort क्या होता है, डकार जिसको बोलते हैं आप. It stamped its small hoofs impatiently. As long as he held his fingers below the level of the milk, the fawn was contented. Means दूध सारा खत्म हो गया नीचे तक, और जो फोन है वो भी कंटेंटेड है, सेटिस्फाइड है. इट क्लोज्ड इट्स आइज ड्रीमीली. अब उसने अपनी आंखें बंद की. इट वॉज एक्सेसिव टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड. एक्सटेसी होता है हैप्पीनेस. इट्स स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ. उसकी जो छोटी सी टेल है वो आगे पीछे घूम रही है. द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिश्ड इन अ स्वर्ल ऑफ फोम. लास्ट में जैसे झाग झाग सी हो जाती है ना, वो लास्ट की झाग वाला दूध है वो भी गट गट करके गर्गलिंग करके पी जाता है. मीन्स ही वॉज वेल कंटेंटेड विद द गिवन मिल्क बाय जॉडीज चैप्टर. This is your chapter 6. Now you have to read thoroughly from the text after listening the video. Thank you so much, students.